Hello everyone, this is Vishakha Jaga coming up with next section of Simplifying the Editorial, where we bring the editorial for you, which are more important from examination perspective. We do the detailed analysis for you. We make sure the important information is available to you, and we don't you don't have to waste your time in looking here and there. Everything is analyzed for you. So this session is brought to you by AQIS. Now let's move ahead. So the first editorial is media and sedition. So this talked about how the media and sedition, it talks about the importance of sedition or non-importance of sedition in present time. You know how maybe the sedition as a provision has outlived its utility, or if it has to stay in the book of the legal laws, it has to changed and according to needs and demands of the people. Because it is it's a colonial era legislation and with utility is being pushed. Now, first to understand is which article we're talking about is this. It is particularly in this article that is we are talking about. And this particular article, see, you can see the heading. It is media and sedition that we're talking about. So this is article. This is the one article जो कि सबसे पहले हम deal करेंगे. It says कि the criticism of the government, it has been बहुत time से it has been recognized that any kind of criticism that does not amount to incitement or violence against the government should not be considered as sedition. And so far, various judicial pronouncements said the same, but in practice, it is not being seen. This archaic, and the article says how this archaic and colonial view, because this article, this entire sedition was brought at the time of the by the like we saw in the previous article, how Macaulay was the first one to talk about this, how it the sedition law was first talked in British laws when in the era when the criticism against the government was not tolerated at all. So it was that time जब government के against आप कुछ कह नहीं सकते थे. But this is not the same time. In this time, any responsible government invites the criticism, and in fact, it works on the principle in order to reform its scheme or its constitutional mechanism. Then it says that for that reason, it says that this is a very archaic law and colonial view that any attack on incumbent should be met with fierce persecution. कि आप हर तरीके की criticism को अगर आप सिर्फ खत्म करना चाहते हो, तो आपका mindset बहुत ही colonial है. And it is this colonial mindset that this article is trying to fight. Now, in a significant judgment, Supreme Court quashed the criminal case against the journalist Vinod Dua, जो कि हिमाचल प्रदेश से थे, and he presented some critical image of the government regarding some scheme, and then it says but the Supreme Court said it not only just quashed the entire FIR against the Vinod Dua, but also it reinterpreted the section 124. अब जो section 124, अब यहाँ पे PT के लिए आपको क्या information याद रखनी है कि it is section 124A of the IPC which deals with the sedition. और भी बाकी सारे sections हैं, जैसे section 153 भी है, but section 124A in particular. But it is section 124A in the IPC, its particular deals with the sedition. तो अगर आप ये facts अगर PT के लिए याद रखेंगे तो आपको future में मतलब anywhere it may not be UPPCS, but आपका ना UPSC but UPPCS और PCS बाकी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. Also, you can yourself quote example. अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कोई भी अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप खुद लिख सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ लॉ कमीशन की क्या जरूरत है टू आर्काइक और ऑब्सोल्यूट लॉस के अगर आप एग्जांपल दे रहे हो तो आप सेक्शन 124A ऑफ द IPC के बारे में बात कर सकते हैं. Now next is in this same article, the author criticizes the act for various reasons. It says in colonial era, any kind of criticism was not tolerated. मतलब तब तो tolerate नहीं करते थे. But are we living in the same colonial era? Can't we say anything about sedition? And in the previous article, we saw in the previous article, the sedition law was used against a famous freedom fighter, जिसमें आपके महात्मा गांधी जी आते हैं, फिर इसमें आपके बाल गंगाधर तिलक भी आए थे, और इसमें इनफैक्ट आपके JC बोस भी आ चुके हैं. So these was very eminent people and freedom fighter जो कि इसका शिकार हुए थे. And in post-independence period, any responsible government actually should be very positive about the criticism and not always take it that इसकी existence को threaten कर रही है. And this is why article says कि it only when any kind of criticism that is pernicious, that to the public disorder या किसी तरीके का violence करता है, it's only that scenario
that particular thing should be treated as citizen, तभी उसको sedition माना जाना चाहिए. Before that, do not treat it as a sedition. In fact, Supreme Court also talked about the same thing. So it says कि neither law is changed, but what has happened over the period of time, ना तो law बदला है, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि एनी काइंड ऑफ लाइक आप कोई भी स्पीच दे रहे हो उसे सेडिशन के गाब में लाया जा सकता है. नॉर अ पॉलिटिशियंस आर वेरी वाइज कि अच्छा ठीक है लॉ इतना अच्छा नहीं है, politician can act wise, कि they can tolerate the criticism. Like at time of like it is said at time like after independence, Sardar Patel and Nehru used to be kind of like politicians जो कि criticism के लिए इतना वो नहीं होते थे. In fact, Atal Bihari Vajpayee had stories to tell. How he acted wisely on the criticism, and not any criticism was considered as a threat to the existence of government या state के लिए. But what has happened right now, at currently it is misused widely. So it is misused by politicians, by police, and it has given a disproportionate and unprotected power to these people, because of which the tolerance even COVID के time पे, and a very good example was COVID. During at time of COVID, the people who were posting on the Instagram, need was regarding there is a lack of oxygen, there is lack of oxygen concentrator, drugs नहीं है, medicines नहीं है, oxygen ventilators नहीं है, and even people who are asking these kind of thing help for their own relative, the action were taken against them. So any kind of criticism, very genuine criticism, was not tolerated by the government. So because of which the Supreme Court became very of course now, not earlier, became the critical of the government. And this act is also criticized कि बहुत ही weak है और बहुत ही overboard है. So these are criticism जो कि आप याद रखेंगे. पहला, it has colonial era history. Its validity in present time is being questionable. Modern era democracy promote the criticism, genuine criticism, which actually lead to the innovation in the governance. And it is a very vague and overboard, because of which the chances of misuse is high. तो इन 4 बेसिस पे, इन 4 पॉइंट्स को आप अपने टिप्स पे रखेंगे और आप सेडिशन एक्ट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं. So because of which the act is criticized. In fact, Supreme Court reiterated the Kedarnath judgment. Kedarnath judgment was one of the judgment जिसमें Supreme Court said कि journalistic comment criticizing the government would not mean sedition अनलेस उससे पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा हो या वायलेंस हो रहा हो. अगर आपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, देखो कोविड की मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने मिसमैनेज किया है, या फिर गवर्नमेंट को ग्लोबल टेंडर निकालना चाहिए था, आप इस तरीके से वायलेंस थोड़ा इंसाइट कर रहे हो. लेकिन अगर आप हेट स्पीच लेकर आ रहे हो कि नो दिस गवर्नमेंट इज नॉट राइट, अब इंडिया में स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड, नाउ स्टेटलेस ऑर्डर होना चाहिए, देन दैट में अमाउंट टू ना आप स्टेट के अगेंस्ट जा रहे हो, इंडिया एंटायर आइडिया ऑफ स्टेट. सो देयर हैज टू बी प्रूडेंट, उसके आगे उसमें एक वेरिएशन होना चाहिए. एंड इन ऑर्डर टू डू सो, एनी लॉ दैट इज एक्चुअली curtailing the freedom of a citizen, that should be very finely defined. उसको डिफाइन कर देना चाहिए कि दिस विल अमाउंट टू सेडिशन, सो दैट वेगनेस ना हो उसके अंदर और उसका मिसयूज के चांसेस कम हो जाएं. Now let's moving ahead कि आर्टिकल एनालिसिस कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि मतलब दिस आर्टिकल वेलकम्स द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा और इस चीज़ को रीआइट्रेट किया कि जब तक स्पीच पब्लिक डिसऑर्डर नहीं कर रही है या वायलेंस इंसाइट नहीं कर रही है, टिल देन इट शुड नॉट बी काउंटेड एज सेडिशन. At same point of a time, it says that it is unfortunate it did not actually go into कि why police are registering FIR. Isn't it उसके behind political motivation होते हैं, aspect होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को उस पर ध्यान देना चाहिए था. So article says कि this is where judiciary has lagged, and it should think again about this. So with this, we're done with this one particular article जो कि आपके एक left right corner में आपका आता था. नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज रिगार्डिंग कोविड कॉन्स्पिरेसी. इसमें मेंस के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आई टॉक अबाउट दिस कि हाउ यू कैन यूज दिस इन मेंस, एंड आप आर्टिकल को किस तरीके से आप एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोविड कॉन्स्पिरेसी. In COVID conspiracy, it says कि publisher of the science writer Nicholas Waters in एक article में लिखा था कि origin of COVID, did people or nature open the Pandora box at Wuhan. मतलब आर्टिकल कह रहा है ये जो एंटायर पैंडेमिक हम सब लोगों ने सफ़र किया है, was nature responsible for it
or humanity, like some actions of the human were responsible. Now it is going to go in detail. ये अपनी conspiracy theory को open करेंगे. It says, but it's gonna say कि क्या nature responsible था या लोग responsible थे. And it also raises the question to what extent China was responsible, because obviously ये हुआ China से था, तो China को किस हद तक इसके लिए responsible माना जाना चाहिए था. And it opens one particular dimension which is very interesting, because so far this was not thought about. So let's see कि कौन सी dimension के बारे में ये बात कर रहे हैं. Now it says कि when China said that coronavirus, like China believe कि ये China said कि coronavirus has come from seafood. इसको थोड़े story के जैसे देखते हैं. China said कि it has come from seafood market. Then US agreed to it. Like right now US is saying कि नहीं, open, transparent investigation होनी चाहिए. But at that time US agreed to it, which was strange. And later it became clear that US was funding the coronavirus related research in WIV, और WIV is actually said to be the place जहाँ पे ना coronavirus आपका जहाँ से it came into the market and it impacted the entire country. So it says कि when first time it happened कि China said कि seafood market से अगर release हुआ है तो US agreed. And one of the reason was because US was actually investing in the research which was being conducted in that Wuhan particular laboratory. And then says that lab leak proposition which was in news recently, it was discredited as a conspiracy theory because it is coming from the mouth of Mr. Trump. So Mr. Trump was talking about this, and his credibility was questionable, and the entire world is aware of this. So because of this theory is discredited. But then it has the article ask more question. Now article says कि the biological weapon conspiracy, article smells a biological weapon conspiracy. Okay, it is not just simply China is responsible. It says कि both China and US might be linked to this entire conspiracy, where because of the advanced biotechnology, it is possible to genetically engineer an existing pathogen to make them more lethal and difficult to treat. Now article gives an example of SARS कि SARS पे बहुत टाइम से स्टडी चल रही है, and SARS से बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हो रहे थे. But how this COVID virus became that lethal? It was because with various mutation, it was its inability to be treated. इसको treat नहीं कर पा रहे थे, because of which it became lethal. First was inability to being treated, and second is का spread. It spread to the entire world. It became lethal to everyone, but not to one particular country, the one which has developed the antidote to this. And it says कि this is how the biological weapon conspiracy will be this. कि right now आपकी first warfare वो कहाँ होती थी? Land पे हुआ करती थी. फिर आपके सेकंड जो आपका फ्रंट आया वो सी आया. जैसे आपने पढ़ते कि छोला became this the Arabian Sea became the Chola Empire, Indian Ocean became the Chola Seas. So sea became the second front to fight. Even British भी वहीं से आए थे. Third was air warfare. जब आपके air आ गई थी तो वहाँ पे when once the airplanes were invented, those who had hegemony in there, they became the winning country. Then your next front was space and cyber space. These become the next. आपके fifth और sixth dimension आपके होने लगे, cyber space वगैरह आपके होने लगे. बट बीच में बायोलॉजिकल वेपन भी डेवलप होने लगे हैं. इसमें क्या होता है, आप किसी भी पैथोजन को जेनेटिकली इंजीनियर करके उसको अनट्रीटेबल कर देते हो, बट इट द कंट्री विच मेक्स इट ऑल्सो मेक श्योर कि दे हैव एन एंटीडोट, सो दैट वन पर्टिकुलर कंट्री इज सेफ, बट देन अदर कंट्रीज आर अंडर द थ्रेट, एंड बिकॉज ऑफ इट वट एवर गेन इट हैज एट दैट टाइम, बाकी सबको इकोनॉमिक लॉस होता है, बट दिस कंट्री गेन्स एन एडवांटेज एंड इट एक्चुअली डिफीट्स अदर कंट्री इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. But this article is interesting in its heading, on its and actually approach. It says it's not only China, it actually US as well. By saying that कि US was funding all of this, the SARS की जो study हुई थी, and it says कि US would prefer China as it was less expensive and dangerous. Question यही था कि अगर US को ऐसा करना ही था तो चाइना में क्यों कर रहा था ना वो, because US was actually, because China was less expensive and less dangerous territory. So it says कि let's conduct the study in the China only. Now
China has covered up the fact. अब ये this was US perspective. Now let's come up with a Chinese perspective. In terms of Chinese perspective, says कि China has covered up the fact and impeded the investigation. We have seen since beginning कि China is not very transparent and is not providing the access to officials. So it is like the China is very opaque in terms of like conducting study कि how like the virus originated from one particular place and was able to reach the entire world without China being aware of this. So China is very opaque in this manner. Second, it give the example, it substantiated arguments by giving an example that how a doctor that is Dr. Wuhan Dr. Wuhan Lee, who was actually he was trying to alert other people on social media, but he was not treated well. Instead he was put in jail, and because of like lack of care and health facilities available to them, he died due to the same infection he was trying to make other people aware of. So the way he died, where so many people disappeared in China, the article is making like questioning the authenticity of China in that particular regard. Then it also says that countries should demand transparency. Now this is where, because nobody is asking conspiracy theory, but you can write conspiracy theory, because in terms of like in postmodernist approach, a conspiracy and critical theories, and so if you are a sociology student, if you're like a humanities student, then conspiracy theory become part of your syllabus. Like in terms of like critical theorist, like you can add this dimension in there, especially you're not including your own country. आप इंडिया के बारे में नहीं बात करें तो सेफली बात कर सकते हो. तो वहाँ पे पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच एंड क्रिटिकल थ्योरी एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट. तो लाइक स्टेट स्पॉन्सर बायोलॉजिकल वेपन, आप अपने PSIR या सोशोलॉजी स्टूडेंट या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर अगर आप कोई भी आपका ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है तो आप आसानी से वहाँ पे इसको डाल सकते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में. तो एक तो आप इसको वहाँ यूज कर सकते हैं. सेकेंड इज, जब आप अपना GS पेपर 2 में भी अगर आप अपने अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एग्जांपल डालेंगे, तो इंडिया हैज लॉस्ट इट्स इमेज इन द एंटायर कोरोना वायरस थिंग, बिकॉज वी वर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट राइट नाउ व्हाट हैज हैपन, वी कुड नॉट सेव आवर ओन पीपल. वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉर्बिडिटी इंडिया में देखी गई हैं और इंडिया में बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हुए हैं. नाउ इंडिया हैज टू बिल्ड बैक इट्स इमेज, अपनी इमेज पे काम करने की जरूरत है. एंड व्हाट इट कैन डू इज इट कैन एक्चुअली गार्नर इट्स लीडरशिप इन टर्म्स asking the accountability from where does it started. उन कंट्रीज को अकाउंटेबल होल्ड करना जिसकी वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान खोई और इतना सारा डैमेज लोगों को हुआ है. सो इट इज लाइक कंट्रीज शुड डिमांड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बट चाइना ने उनको डिनाउंस किया है. सो इट इज लाइक चाइनीज साइड. नाउ आर्टिकल ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि WHO का पूरा नेरेटिव क्या है इसमें. Now WHO dismiss the lab leak as extremely unlikely. WHO says कि no, this is like extremely unlikely कि लैब से लीक हो के ऐसा हुआ हो. But then article also actually says कि WHO की फाइंडिंग खुद टेंटेड है. Like if you were actually following the news like for last 1 year, then WHO Director General was also in question, because in his appointment China had a greater role to play. So the way he was acting, so it was questioned at that time. So WHO's image is also being impacted in the entire process. Also is Mr. Daszak, who was like part of the investigative team. He was like he was part of the investigative team. He himself has a financial stake in the WIV, and WIV actually apparently is the page जहाँ से आपका वायरस लीक हुआ था. So Mr. Daszak also does not have very like उनके भी कोई clear intentions नहीं है इस चीज़ में. तो एक conflict of interest का केस आ जाता है, जो कि आप अपने ethics के केस स्टडी में लिख सकते हो. conflict of interest, दिस इज अ वेरी गुड ग्लोबल एग्जाम्पल जो कि आप लिख सकते हो आपके एथिक्स GS पेपर 4 में ये आता है. तो लाइक यू शुड रीड दिस एग्जाम्पल. लाइक अब तक कहाँ पे आपके काम आया? GS पेपर 4 में काम आया, आपके GS पेपर 2 में काम आया है. तो न्यूज़पेपर को अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पढ़िए, वो आपको बहुत काम आएगा. GS पेपर 4 में लिख सकते हैं, GS पेपर 2 में लिख सकते हैं. अगेन आपके ऑप्शनल के पेपर में भी इस चीज़ को आप इफेक्टिवली अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं. Now let's move ahead. Now this article goes with the analysis and suggestion. ये इसको एनालाइज करता है कि लाइक देयर इज अ आर्टिकल सेज कि देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ये WIV से ही मतलब ये बेसिकली वायरस मतलब आया है. बट द आर्टिकल इज एक्चुअली वेरी स्केप्टिक. इट सेज कि इट कैन नेवर बी प्रूवन बिकॉज नीदर चाइना इज गोइंग टू गिव यू द एक्सेस, नीदर इनफैक्ट US इज टॉकिंग अबाउट ओपन इन्वेस्टिगेशन, बट इट मे नॉट हैव इट्स इंटरेस्ट अगर कोई क्लियर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो. And it also says it is evident
दैट रिसर्च एट WIP बाय इंजीनियरिंग, इससे एक चीज क्लियर होती है कि बाय इंजीनियरिंग से मोर लीथल कोरोना वायरस फ्यूचर में आ सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इनकी कोई एथिकल बाउंड्रीज नहीं है, यो जहां बनते हैं वहां से कहीं से भी स्प्रेड हो जाते हैं कि बाय इंजीनियरिंग मे बी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बायोलॉजिकल वेपन्स बन रहे हैं और लोगों का इम्पैक्ट हो रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक इवन इन द प्रीवियस आर्टिकल टॉक्ड अबाउट कि दिस इज समथिंग लाइक इसके बारे में पीटी के लिए भी आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि 1972 बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन लाइक हैज टू बी लाइक इट हैज टू बी रेक्टिफाइड. इसमें कुछ ट्विक्स करने की जरूरत है सो दैट इट फुलफिल इट्स प्रोमिसेस. नाउ व्हाट इट्स इसमें अब इसमें लाइक आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. इट डज नॉट हैव द सिस्टम फॉर वेरिफिकेशन इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस. और प्रोहिबिशन होता है. अब प्रोहिबिशन हुआ ना, दिस बायोलॉजिकल कन्वेंशन शुड हैव बीन द मोस्ट एक्टिव वन कि WHO से पहले इसको पहले आना चाहिए था कि लाइक इट शुड हैव बीन एक्टिव इन टर्म्स ऑफ इज देयर अ पॉसिबिलिटी, देन इट शुड हैव इन्वेस्टिगेटेड, बट इट डज नॉट हैव अ सिस्टम फॉर लाइक वेरिफिकेशन ऑफ द लाइक in case of like the non-compliance. Also, penal provision, it has no enforcement mechanism to penalize the infringement. अगर proof भी हो जाता है like for many years Syria is being accused of the same thing, and even if it is being proved a country has actually engaged in use of the biological weapon, like there is no enforcement mechanism. आप penalize कैसे करोगे? Which country is going to penalize the country which has engaged in this such kind of activities? So the article talked about how it has so many default in the entire existing system. Then article talked about how variant of smallpox are also experimented. Now this is a very like article इस caveat के साथ खत्म होता है कि it is a giving a warning कि अभी तो सिर्फ कोरोना वायरस था. जिस हिसाब से आप smallpox के वायरस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो ना, what if smallpox like a disease like smallpox become a pandemic like some after some years. Already many doctors are saying you know this might be the first wave or one of the first virus we are saying, but this might become a new norm of the day when virus like we are going to face so many virus. Ebola से लेकर like many virus we have seen these days और उनकी frequency बढ़ ही रही है. So our countries have to be prepared for this. इसलिए इस treaty को भी revisit करने की ज़रूरत है, अपनी रिसर्च को भी अपना केयरफुल करने की जरूरत है. इनफैक्ट वी नीड टू सी दैट बिकॉज स्मॉल पॉक्स से जो मोर्टेलिटी होगी ना, इट वुड बी लाइक आप काउंट नहीं कर सकते. दिस आर्टिकल इज एक्चुअली मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लाइक दैट. नाउ फॉर प्री समथिंग फॉर एग्जाम जो कि अब हम यहाँ से हम सीखेंगे बिकॉज कॉन्टिन्यूसली 2 आर्टिकल इस ऑलरेडी इस कन्वेंशन के बारे में बोल चुके हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बी स्मार्ट, you know, prepare this convention. If this is being asked twice, then you are supposed to prepare this, obviously. Now, this biological and toxic weapon convention, इसका agreement 1972 में साइन किया गया था. So this agreement came into being in 1972 and it came into force in 1975. ये डेट थोड़ा ध्यान रखना कि आई 1972 में थी लेकिन it came into force in 1975. Now, it was the first multilateral disarmament treaty to ban the production of biological weapon. ये one of the first and one of the successful भी है because बहुत सारी like state इसके पार्टी हैं. एंड इट टॉक्स अबाउट द इंटेंशनल रिलीज ऑफ वायरस बैक्टीरियाज वगैरह, इन सब से डील करती है. देन दे यूज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल टॉक्सिन वगैरह. अब कुछ भी अगर उस तरीके से यूज करे टू हार्म द अदर पीपल, उसका बायोलॉजिकल वेपन माना जाता है. सो दिस इज बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन विच केम इन टू बींग इन 1972 which was ratified in 1975. and please like इस डेटा और फैक्ट्स को आप याद रखेंगे. that is biological and toxic weapon convention. इसका फुल नाम भी आप याद रखें. now we're done with this article. Now let's move ahead. There was like interesting article like recognizing the sex work as a work. Like this was a very interesting article in terms of it talks about legalizing the work. These are one of the like ये बहुत ही debatable है और इसलिए हम GS paper 2 और GS paper 4 दोनों के अंदर देखेंगे. Now you're gonna see how I'm gonna like open the dimension for the GS paper 2 and how I'm going to open the dimension for the GS paper 4. Now article talked about like how pandemic have hit millions of the people. हमारे पास इकोनॉमिक डेटा अवेलेबल है कि कैसे हमारा जीडीपी श्रिंक हो चुका है, कैसे ना हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें वेरियस सेक्टर्स में मिल रही है. हमारा आईआईपी और वेरियस जो सर्वेज हैं वो सब यही कर रहे हैं. नाउ टू एक्सप्लेन यू दिस, ये वाला आर्टिकल हम बात करें नेक्स्ट पेज पे. बाकी 2 आर्टिकल वी हैव टॉक्ड अबाउट. सो दिस आर्टिकल वी आर टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग द सेक्स वर्कर. एंड इट सेज कि लाइक पैंडेमिक ने सबको इम्पैक्ट किया. मेनी पीपल हैव लॉस्ट लाइफ, many have lost livelihood, they are not able to find job, but one of the worst hit is also the sex worker.
इट इज़ नॉट ओनली कि उनकी लॉस, उनकी लाइवलीहुड गई है, इन टर्म्स ऑफ उनका वर्क तो रिकॉग्नाइज भी नहीं है, लेजिटिमेसी भी नहीं है. आर्टिकल टॉक्ड अबाउट कि हाउ दे लाइक दे सो मच ऑफ, एक तो सोशल स्टिग्मा है उनके अगेंस्ट, एक सोशल स्टिग्मा है, और एक उनका लीगल लेक्यूना है कि उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता स्टेट में एज अ, उनकी सिटीजनशिप भी एग्जिस्ट नहीं करती. तो आपका मतलब लाइक दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 1 एज वेल. आप इसे सोशल इश्यूज में लिख सकते हैं. ऑल्सो आप जीएस पेपर 2 में भी लिख सकते हो इसको, और एथिक्स में भी आप अपना लिख सकते हो, राइट ना. इन टर्म्स ऑफ कि एथिक्स कितनी सब्जेक्टिव होती है, बिकॉज आपकी जो ट्रेडिशनल एथिक्स है वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती. ट्रेडिशनल एथिक्स गोज अगेंस्ट रिकॉग्निशन. ऑन द अदर हैंड वी हैव एविडेंसेस, जब हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में द सेक्स वर्कर वर गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, बट हमारी ट्रेडिशनल एथिक्स अभी भी इस प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करती, और वहीं पे हमारी मॉडर्न एथिक्स भी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करती. ओके. Now, next is the article makes argument in favor of decriminalization of sex worker. कि not just अब condition क्या है, एक तो ये एक normal scenario है कि like this is where you are being recognized, this is where this is punished, and this is where it is treated with dignity. Everybody try to be here, यहाँ पे रहना चाहते हैं सब कि ना सबकी प्रोफेशन को डिग्निटी हो, बट एटलीस्ट ये तो बेयर मिनिमम सबको मिलना चाहिए रिकॉग्निशन. बट यहाँ तो ये हाल है कि उनके प्रोफेशन को ही पनिश किया जाता है, डीक्रिमिनलाइज किया जाता है. एंड दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कि अगर आप एटलीस्ट मतलब दिस इज समथिंग इज बीइंग आस्क्ड, ये तो होना चाहिए, ये तो है ही नहीं, और कम से कम इसको तो बंद करो, डीक्रिमिनलाइज मत करो उनके प्रोफेशन को. सो देन इट टॉक्स अबाउट कि ना हाउ दिस द एग्जिस्टिंग लॉ. आपका अब बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग लॉ कौन सा है. एग्जिस्टिंग लॉ है आपका इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जो कि आपका आर्काइक लॉ है, क्योंकि ये सेक्स वर्कर को आपका इमोरलाइज करता है, नॉट जस्ट रिकॉग्नाइज करना, इमोरलाइज करता है कि दिस इज इमोरल प्रोफेशन एंड इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस. अब दिस माइट बी वैलिड आर्ग्यूमेंट. द आर्टिकल सेज कि इट इज दिस इज नॉट लाइक कि आप सबको लाइक दिस शुड बी डन, लाइक इसको आप कंप्लीटली प्रमोट करो. इट इज सेइंग दिस माइट बी वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर माइनर गर्ल्स, बिकॉज उनको नहीं पता होता, उनको ल्योर किया जा सकता है, माइनर गर्ल्स एंड इनफैक्ट माइनर बॉयज एज वेल, दोनों के लिए. माइनर को नहीं पता होता ये. So this is valid for the, like this is a valid argument for the minor, but an adult woman who is pushed into this without their consent. If a person is pushed into this without their consent, then this is a very valid argument कि ये immoral चीज़ है. But what about those women जो कि वॉलेंटरी इस प्रोफेशन में एंटर करती हैं. नाउ दिस इज नॉट लाइक नाउ टू क्रिमिनलाइज देम, इट इज अ डीवियस एक्टिविटी. आप उनको तो क्रिमिनलाइज ना करो ना, जो कि वॉलेंटरी इस एक्टिविटीज में आए हैं. सो देन एक्ट टॉक्ड अबाउट हाउ इट स्नैच्ड अवे द राइट ऑफ अ सेक्स वर्कर, मेकिंग देम मोर प्रोन टू द हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड वॉयलेंस. तो लाइक अब इसकी वजह से बिकॉज दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पे दो चीज़ें एज आई टॉक्ड अबाउट द सेम हायरार्की ना, एक तो होता है डिग्निटी ऑफ द वर्क, दूसरा होता है एटलीस्ट लाइक रिकॉग्निशन. यहाँ पे तो रिकॉग्निशन है, यहाँ पे डिग्निटी है, और यहाँ पे हम बात करते हैं पनिशमेंट. तो इसने बोला है कि यहाँ पे सेक्स वर्कर इस स्टेज में रहती है, रिकॉग्निशन की तो बात दूर है, यहाँ पे इनको हैरेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो वायलेंस और अब्यूज स्टेट ऑफिशियल के हाथ में ही सफ़र करते हैं, नॉट जस्ट कॉमन पीपल, स्टेट ऑफिशियल ही इनको हैरेस करते हैं. Now it is a high time to rethink the sex worker from labor perspective. अब उनको like instead of immoralizing, उनको labor perspective से देखा जाए और उनको भी basic labor rights मिले. And this is very important. Like you might be reading in news recently कि हमारे ना labor code आ चुके हैं, wage code, जिसके हमारे 4 provisions हैं. ज़रा याद करके मुझे बताना कौन कौन से हैं. हमने देखा है ना, हमारे 4-5 वेज कोड आ चुके हैं, उनको ज़रा कोड याद करके दिखाओ. एक तो आपका लाइक एक सेफ्टी पर है, एक सोशल सिक्योरिटी पर है, एक मिनिमम वेज पर है. इस तरीके के आपके 4 हैं, ये आपके टिप्स पर होने चाहिए. और जब उसमें हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स मीन्स गिग वर्कर्स वगैरह जब इनके बारे में बात कर चुके हैं, तो लाइक इट इज़ अ हाई टाइम कि हमारी सोसाइटी इतनी मॉरल हो जाए कि इनको भी बेसिक राइट दे सके. सो इट गिव्स द रीज़न फॉर द लीगल चेंजेस. सो लाइक एंड देन इट टॉक्ड अबाउट कि जुडिशियल इंटरवेंशन अभी इस समय क्या है. सो इट सेज कि जस्टिस वर्मा कमीशन लाइक इट सेज कि सेक्स वर्कर विलिंग टू डू सेक्स वर्क शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड गारंटीड लेबर. अब मीन्स में क्या होता है, आप खुद ये सब बातें लिखने लगे and imagine a person who is actually checking the answer might be a very conservative person. There is a possibility you may lose an answer because though despite the fact that you want a person to be very neutral and this is your perspective, but if you're taking a step which is modern but you may think a conservative person might be reading your answer, then quote
a particular committee, it is a Justice Verma committee which says that कि उनके लेबर को भी डिग्निटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए और गारंटीड लेबर राइट्स होने चाहिए. सो दिस इज लाइक दिस, ये उनको मिलना चाहिए. नेक्स्ट इज जुडिशरी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्कर्स राइट टू लाइवलीहुड. जुडिशरी तो इवन ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि सेक्स वर्कर के राइट टू लाइवलीहुड को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. एंड सुप्रीम कोर्ट बुधादेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल इन 2011 ओपाइन दैट सेक्स वर्कर हैव राइट टू डिग्निटी. सो दिस इज अ वेरी लाइक गुड इंटरवेंशन. आप ये दोनों याद रखें, एक तो जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट, एक बुधादेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल की जो ओपिनियन है, इसको लाइक राइट डाउन इन डायरी. एंड इफ द क्वेश्चन इज अबाउट सेक्स वर्कर, अपने एथिक्स में खुद आप इसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना. लाइक यू कैन हाउ ट्रेडिशनल मोरालिटी, मतलब एथिकल जो एथिकल मोरालिटी, ये एथिकल रिलेटिविज्म होता है या कल्चर रिलेटिविज्म जो होता है, या जो आप जो एक्चुअली जो टर्म है जो होता है वो आपका मॉरल रिलेटिविज्म. मॉरल रिलेटिविज्म में क्या होता है, जो चीज़ आपके लिए मॉरल है वो शायद दूसरों के लिए मॉरल ना हो. तो ऐसे डिबेट में क्या होता है, इनफैक्ट आप अपनी सोसाइटी में भी अगर आप डिबेट को स्टार्ट करोगे, और मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, लोग अलग अलग तरीके से खड़े हो जाएंगे. सम पीपल विल से नो सेक्स वर्कर इज समथिंग लाइक दिस शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन आवर कंट्री. इवन यू द पीपल यू कंसिडर एजुकेटेड, then there might be a community which will be say कि नहीं, dignity of labor या work होना चाहिए. This kind of debate on the ethics को moral relativism कहते हैं. तो आप आसानी से ना इसको भी एग्जाम्पल में लिख सकते हो, moral relativism के एग्जाम्पल में how ethics even have taste person to person, और जो कि सोसाइटी के साथ चेंज होती रहती है. एंड आप उसको प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन में भी डाल सकते हैं. सो दिस इज व्हाट लाइक जुडिशियल इंटरवेंशन वी वर टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आज लाइक एथिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए थे. नेक्स्ट इज बिहेवियरल चेंज कैन रिड्यूस ट्रांसमिशन. दिस वॉज वेरी गुड आर्टिकल, और इससे आप एथिक्स को प्रैक्टिस में यूज़ कैसे करते हैं आप इसे सीखेंगे. लाइक आई टेक यू एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड. इट सेज कि देयर टू लार्ज पार्ट ऑफ पैंडेमिक आर्टिकल सेज कि पैंडेमिक को हम दो जगह पे डील कर रहे हैं. एक तो आपकी मेडिकल साइंस लड़ रही है, दूसरा ह्यूमन बिहेवियर. मतलब एक तरफ हम क्या बात कर रहे हैं कि ड्रग्स अवेलेबल कराओ, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराओ, वेंटिलेटर्स अवेलेबल कराओ, हॉस्पिटल बेड्स होने चाहिए, और दूसरा ह्यूमन बिहेवियर जहाँ हम क्या करें, मास्क पहनो, घर पे रहो, स्टे एट होम जितना हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग रखो. दीज आर व्हाट सोशल बिहेवियर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर फाइटिंग द वॉर एट टू एंड्स. एक जो हमारा थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा सा टेंजिबल आस्पेक्ट है, टेंजिबल इन टर्म्स ऑफ थोड़ा टेक्निकल आस्पेक्ट है, राइट ना. एक हम टेक्निकल आस्पेक्ट पे लड़ रहे हैं, और एक हम थोड़ा नॉन टेक्निकल ह्यूमन आस्पेक्ट पे लड़ रहे हैं. और अब जो हमारी रीसेंट थ्योरी बोलती है कि टेक्निक से ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. तो दिस आर्टिकल इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन दो इज नीडेड, बट रिसेंटली भी पॉसिबल नहीं है. बिकॉज हमने देखा वैक्सीन शॉर्टेज कितनी हो रही है. लाइक हमें जहाँ पे 1.7 बिलियन डोजेस बनाने चाहिए, वहाँ हम सिर्फ 17 मिलियन डोजेस पर मंथ बना पा रहे हैं. विद दिस हम शायद हर्ड इम्यूनिटी इतनी आसानी से ना ले पाए. तो हमारे पास तो हम मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट पे इतनी जल्दी हम काम नहीं कर सकते. तो इसका मतलब हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए, नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट पे, बिकॉज हियर लाइफ्स आर एट स्टेक. यहाँ पे लाइफ आपकी एस्पेक्ट पर है. सो इट टॉक पर नीड टू फोकस ऑन द बिहेवियरल एस्पेक्ट. इट सेज कि लैक ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, नॉट वेयरिंग मास्क आर द रीजन फॉर डेली राइज इन इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन आपके सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट की वजह से नहीं हो रहे, इन्फेक्शन आपके इन वजह से भी हो रहे हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे वगैरह. ये सो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, इट इज दिस आर्टिकल वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. लाइक आई थॉट इज अ गुड आर्टिकल, सो आई टॉक्ड अबाउट इट. दिस वाज अबाउट जर्नलिज्म. अगर किसी को जर्नलिज्म अपना एज अ कोर्स मेंटेन करना हो तो वो इस आर्टिकल को पढ़ सकता है. आई डिडंट थिंक कि ये आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस आर्टिकल को लेके नहीं आई. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ आर्टिकल सेंस हैव डिवाइडेड कि हम कौन कौन से डील करेंगे. एक अपना टेक्निकल एस्पेक्ट देखेंगे, एक नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट पे देखेंगे. आर्टिकल सेज कि टेक्निकल एस्पेक्ट तो चलो बहुत आर्टिकल आ चुके हैं, अब थोड़ा नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस डायग्राम को जितना हो सके अपने दिमाग में उतार लो, बिकॉज परसुएशन, सोशल इन्फ्लुएंस आपका जीएस पेपर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर लाइक पेपर 4. And this entire article revolves around this only.
लाइक आई हैव गिवन द एथिक्स, मतलब जो उसमें आर्टिकल में नहीं थी, आई एडेड द डायमेंशन सो दैट यू कैन कनेक्ट विद पर्टिकुलर एस्पेक्ट. नाउ अंडरस्टैंड दिस. Like Aristotle was one of the first person to talk about how to persuade anyone. Persuasion का मतलब क्या होता है? Now definition of persuasion is like, अब थोड़ा सा ethics पढ़ लेते हैं यहाँ पे. Definition of persuasion is like changing the behavior of a person in intended direction. अगर आप किसी पर्सन से आप जो चाहते हो अगर वो करवा लो अपनी बातों से, अपने लॉजिक से, एथिक्स से, अपनी पैथोस से अगर आप वो करवा लो तो उसे परसुएशन कहते हैं. दैट मीन्स चेंजिंग द एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन द डिजायर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड परसुएशन. नाउ एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस. नाउ एरिस्टोटल गेव द 3 डायमेंशन कि किसी को परसुएट करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं. एक ईथोस. ईथोस क्या होता है? ईथोस ट्रस्ट के बेसिस पे बनता है. अब ट्रस्ट के लिए क्या चाहिए होता है? ट्रस्ट के लिए या तो पर्सन के पास नॉलेज हो तो आप यकीन कर लोगे कि बाय द वे अगर WHO बोलेगी ना कि पानी पीने से आप हेल्दी रहोगे, आप मान जाओगे, बिकॉज WHO क्या है, उस फील्ड में एक्सपर्टीज है उसकी, राइट ना. आप मान जाओगे इस बात के लिए. कोई साइंटिस्ट अगर बोल रहा है तो आप उसकी बात मानोगे. तो फर्स्ट इज, तो एथोस एक नॉलेज से आता है. एक ट्रस्ट आपका आता है पर्सन का ब्रांड होने से. अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर है किसी का तो आप ट्रस्ट करते हो, ओ दैट पर्सन इज नाइस. एक ट्रस्ट किसी के लाइकलीनेस से आता है कि आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है. तो ये था आपका ईथोस वाला पार्ट. दूसरा होता है इमोशंस. तो आप इससे ना किसी को परसुएट कर सकते हो कि WHO चाहे तो किसी को परसुएट कर सकते हैं पानी डेली पियो, बिकॉज उसकी क्रेडिबिलिटी है, राइट ना. ऐसे ही अगर आपको ना इमोशंस के बेसिस से परसुएट किया जा सकता है. आप इमेजिन आप ना रूल डेली वायलेट करते थे, लेकिन फिर आपको बोला गया नहीं भारत माता के लिए करेंगे ये, आप वो कर दोगे. और एक्चुअली आप जितना भी वॉयलेंस देख रहे हैं ना मीडिया में, इमोशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म, इन द नेम ऑफ नेशनल प्राइड, इन द नेम ऑफ कल्चर. इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है. एंड इमोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जिस बेसिस पे ना आपको परसुएट किया जा सकता है. सो सेकेंड इज लाइक दिस हर्ट है ना, ये दिल आसानी से आपको पिघला के आपसे काम कराया जा सकता है. थर्ड इज लॉजिक एस्पेक्ट. Third is the logical aspect, and on the basis of logic a person can be persuaded as well. You give a fact to the person कि you know आप अगर पानी पीते हो तो then 50% chances कि आपकी जो स्किन है ना वो ग्लो करेगी. There is a greater chances कि आप पानी पीना शुरू कर दोगे, right? If anybody come to you and says you know start drinking water today and your skin will glow, like I'm sure many of you are going to start drinking water from today onwards. So this is like this. So there are various aspects of like persuasion. Now this article is actually talking about all those aspects one after another. कि how one aspect can deal with the persuasion of other. Okay, now let's talk about this कि how we can improve the mask wearing, social distancing और जो बाकी behavioral aspect है वो कैसे मनवा सकते हैं. तो हमारा जो पहला स्टेप है वो है logical persuasion. Right? Remember we said ना logic इसका हिस्सा आता है यहाँ पे. तो एक आपका एथोस है, एक आपका इथोस है और दूसरा आपका पैथोस है. इस डायग्राम को अपने दिमाग में भर लो और परसुएशन पे सवाल आए तो बना देना. इवन इनफैक्ट एथिक्स में केस स्टडी भी आती है ना, वहाँ पे भी लिख के आ सकते हो कि देखो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो यहाँ के, और लाइक एथिक्स में इमेजिन केस स्टडी आ गई कि यू आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, किस बेसिस से मनाओगे. तो सबसे पहले एरिस्टोटल का डायग्राम बना दो. That is the one thing that is going to clear the examination. Oh, that person is educated. डायग्राम यूज कर रहे हो केस स्टडी में कि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आई नो अ पर्सन कैन बी a person can be persuaded by using the 3 or 4 dimensions and I'm gonna work on that. और अपने steps है उनको इसमें categorize करके डालो. Persuasion is the first thing that you're going to do because other steps also you have कि आप law and order machinery को use कर सकते हो, but always try to give soft skill. अपनी soft skill को पहले use करो, अपनी hard skill को बाद में लेकर आनी है. Like that is a sign of a good administrator. Bring soft skill before and bring hard skill later. So let's talk about soft skills. तो जो soft skills है then first is infographic logics. कि infographics में क्या है, give the basic information कि why mask wearing is more effective. तो mask wearing more effective कैसे है कि इससे disease transmission कम होगी, आप healthy रहेंगे, आप safe रहेंगे, आपकी family safe रहेगी.
नेक्स्ट इज देन इज अगेंस्ट द कोविड-19 ट्रांसमिशन कि हाउ टू वेयर मास्क, इस पे भी इंफॉर्मेशन दो कि मास्क, क्योंकि अभी के रिसेंटली क्या WHO ने बताया है कि डबल मास्किंग इज ऑल्सो इफेक्टिव, कि एक थोड़ा और दोनों के थोड़ा लाइक टेक्सचर अलग होना चाहिए, तो इट्स ऑल्सो लाइक इन्फोग्राफिक्स में ये भी होना चाहिए कि हाउ टू वेयर मास्क, ऑल्सो वेन टू वेयर मास्क। अभी रिसेंटली WHO ने ये भी कहा है कि लाइक पीपल शुड ऑल्सो स्टार्ट वेयरिंग मास्क इनसाइड होम एज वेल, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एयरबॉर्न हो चुका है। एंड इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि कैसे ना वेंटिलेशन प्रॉपर देने की जरूरत है, जिससे कि ना आप सेफ रहें, सिक्योर रहें। सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको लोगों को अवेलेबल कराना है। तो पहले बोला लॉजिकल परसुएशन, उनके सामने फैक्ट रखो। अब आपके पास ये फैक्ट हैं, ये फैक्ट उनके पास जा रहे हैं, ये कैसे इंश्योर करोगे? यू हैव टू मेक श्योर दैट द फैक्ट्स यू हैव आर रीचिंग दोज पीपल एज वेल। नाउ यू आर गोइंग टू ensure this by using the trusted channel and not distrusted. As I said na, if you use the scientists, WHO and health expertise, there are greater chance कि the people will be willing to listen to you. जैसे AIMS official is talking about it, Dr. Fauci of the US, like people are watching his videos, and the person like this who have greater credibility and knowledge talks about it, then people are willing to listen. आ गया ना, like ethics, credibility, if the person has knowledge, then the people are willing to listen, and that is what you're supposed to do. अपने आंसर में डालो इस चीज को कि ethos है और ethos के बेसिस पे काम करेंगे हम। Next is, तो all the changes in information should be shared with everyone in a comprehensive, timely manner. अब जो बदलाव आ रहे हैं ना, we are seeing every minute changes are happening. I give an example. What happened was plasma was actually taken as a method to treat the COVID patient. But then Delhi government ने recently इसको बाहर निकाल दिया और ICMR ने बोला कि plasma is not really effective. In fact, some scientists says कि plasma might be contributing to the worsening of the health of the people. अब क्या लोगों को ये पता है? सबसे पहले उनके रिलेटिव बीमार होते हैं, वो प्लाज्मा मांग रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कि नॉट जस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड अ वेरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेट देम कि अब रिसेंटली क्या चेंजेस हुए हैं। सेकंड इज काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन एज वेल। अब देखो क्या होता है, एक होता है यहाँ पे वीड्स उगे हुए, ठीक है ना, आप यहाँ पे नया पौधा उगाना चाहते हो जो कि आपको लगता है कल आम देगा, तो दो चीजें हैं। पहली बात तो नया पेड़ लगाना, इसके दो स्टेप होते हैं, प्लांट न्यू ट्री is important. Second is weeding out the unwanted plant is very important. First, अगर आप weeding out नहीं करोगे तो ये weed ना इसके साथ compete करेगा, इसको अच्छे से grow नहीं करने देगा, तो weeding out is very important. And misinformation is like weeding out only. Weed out the unwanted information so that right information लोगों के पास पहुंच चुके, ये है आपका wanted information, राइट ना। सो वीडिंग आउट मीन्स वीडिंग आउट मिस इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडिंग आउट नहीं करोगे तो इसके साथ कम्पीट करेगा, और नया पौधा नहीं लगाओगे तो खाली बंजर जमीन पे तो वीड्स ही लगेंगे ना। सो दैट्स व्हाई बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दूसरा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना। सो लाइक दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड स्टेप कि हमने ये तो देख लिया लॉजिक एस्पेक्ट देख लिया, अब आते हैं पैथोस, इमोशनल एस्पेक्ट, दैट इज इमोशनल परसुएशन। अब यहाँ पे क्या हो, या तो आप नेशनलिज्म पे बोलो या लोगों की लाइफ थ्रेटन है इस बात पे बात करो, और फियर अपील, राइट ना, कि फॉर दोज हु हैव इंफॉर्मेशन बट आर नेग्लिजिबल, convince them about the risk कि if you go outside then there is a risk to your life is at risk, life of your family members is at risk, your mother, your father, your children, everybody is at risk. Now if you use an emotional appeal like this, there is a greater chances people will listen to you. Often we become more negligent about us कि okay जब लिखा है तब आ जाएगा, मौत तो सबको आनी है, but जब आप अपनी फैमिली मेंबर के बारे में आते हो प्रोटेक्टिव हो जाते हो। That means this is why article is talking about emotional। तो यहाँ पे हमारा कौन सा एस्पेक्ट आ गया, पैथोस वाला एस्पेक्ट आ गया, राइट ना। So this is how you use ethics. Next is third step, it talked about reward and punishment method. Now reward and punishment is also very good method to actually instill a value in person. Like बचपन में कभी आपने चोरी की और चोरी करने के लिए माँ ने खूब मारा, तो आप चोरी करना, यू मेमोराइज दिस वैल्यू समथिंग, यू नो इट इज अनएथिकल एस्पेक्ट। बट इफ आपने कभी बड़े लोगों के पैर छुए, उसके लिए आपको चॉकलेट दे दी गई, you were given a toffee when you were actually like said namaste to your grandparents, then you thought it is a good value. So this is how reward and punishment actually instill a value in person. So the article also talked about like communicate the benefit of mask wearing and give a visible badges कि whosoever is wearing mask ना, like run videos
and then talked about, you know, how this person helped in this, clapping for those people. So these are like very good example, like give visible badges so that people start in adhering to the norms. So this is how like you're using the reward and punishment method. The next, the fourth step is the brand ambassador. As I talked about this now, कि in terms of ethos, like either person have knowledge or like somebody is like is a brand, so that you know सलमान खान ने किया तो हम भी करेंगे, बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट खरीदेंगे, अब अमिताभ बच्चन करें तो हम भी करेंगे. That's why like from Swachh Bharat Abhiyan to many other provision, many of the famous personality are being enrolled so that people listen to them, because people often listen to them. उससे ethos वाला aspect जो होता है आपका brain का होता है ना, वो activate हो जाता है. यहीं पे आपका reward and punishment भी काम करता है. तो लाइक ब्रांड एम्बेसडर, इसे ट्रस्ट रहता है उन पीपल में. यू हैव ट्रस्ट इन द ब्रांड एम्बेसडर. सो इट इज टॉकिंग अबाउट यूज फेमस लोकल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस टू एक्चुअली टारगेट, टू गिव द मैसेज टू द टारगेटेड पीपल. सो इट इज लाइक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप कि आपकी पूरी एथिक्स रिवाइज हो रही है इस आर्टिकल में. द नेक्स्ट इज देन इट टॉक्ड अबाउट कि दिस इज हाउ वी आर डन विद दिस, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट. देन इट टॉक्ड अबाउट फिफ्थ स्टेप, दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस. लाइक परसुएशन के नेक्स्ट टॉपिक में सोशल इन्फ्लुएंस भी है ना, और सोशल इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्या थी? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस? व्हेन यू चेंज द एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ द टारगेट ग्रुप इन द डिजायर डायरेक्शन. आप डिजायर डायरेक्शन में चेंज करते हो, बट हेयर इट इज नॉट वन पर्सन, इट इज द कम्युनिटी की वजह से. हेयर इंडिविजुअली वॉलंटरली, लाइक उसमें क्या है, या आप इंटेंशनली वो चीज़ करें. इसमें इंटेंशनली ट्राई टू कंप्लाई विद द सोशल बिहेवियर. बाकी लोग जो कर रहे हैं वो वही करने की कोशिश करता है. लाइक कम्युनिटी का हम पे असर पड़ता है. अगर हम ऐसी कम्युनिटी में जा रहे हैं जहाँ पे ना थूकना चलता है, तो आप भी थूकोगे रोड पे. बट इफ यू गो टू जर्मनी एंड समथिंग लाइक दैट, और आप रोड पे थूक दो, और लाइक एवरीबडी फ्राउन अपॉन यू, like you're spitting in the street and people are frowning at you, I'm sure you're not going to do this. So community has an influence on us. In India it might be tolerated and you think sab chalta hai, but in Germany it is not chalta hai. So social influence are very good parameter by which you can actually bring a change in people's behavior. So it talked about like we should not rely on police. Like it says na ki don't just rely on hard skill, use soft skill का use करो. So people should ask each other humbly and politely to wear mask, and that often works. A simple humble request saying, you know, आपकी family danger में है, मेरी family danger में, can work. So like this is how like आप ethics में ना आप कोविड के एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो अपने GS पेपर 4 में. आपका पूरा GS पेपर 4 रिवाइज हो जाएगा इस तरीके से. So this is like social influence. Next is moral authority. दिस इज लाइक अगेन हेयर हम यहाँ पे कौन से डायमेंशन के बारे में बात करें? एथिक्स. बिकॉज एथिक्स में ना ब्रांड में मॉरल अथॉरिटी भी आती है. ब्रांड एम्बेसडर आर व्हाट? दे आर मॉरल अथॉरिटी. दीज आर द पीपल हु वी वांट टू लिसन टू, लाइक नेल्सन मंडेला, like Mahatma Gandhi. These are the people who have moral authority. So this is like if they make an appeal, we are very willing to listen to them. So it is talking about कि leaders on the all level, they themselves should follow the rules. बिकॉज देन अदर पीपल विल फॉलो. अगर आपके लीडर ही खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या चांसेस हैं कि आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं कि आपकी बात सुने? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लीडर देमसेल्फ शुड फॉलो रूल सो दैट अदर पीपल वुड ऑल्सो स्टार्ट वेयरिंग मास्क एंड फॉलोअर्स विल डू द सेम. सो दिस इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट कि लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द सेम थिंग, अगर आप जीएस पेपर 4 का आंसर लिख रहे हो तो आप बोलोगे सिंस आई एम अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ माई अथॉरिटी देन आई माई सेल्फ शुड ऑल्सो वेयर मास्क इन पब्लिक वेन एवर आई एम आउटसाइड, and then only I can talk about it. अगर आप खुद मास्क नहीं पहन रहे तो आप प्लीज इसके बारे में बात ना करें. तो दिस इज लाइक हाउ यू कैन राइट द एग्जाम्पल. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो कि आप कहीं पे ना कोड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द 7th स्टेप. दिस इज 6th स्टेप. आप एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं इसमें? लाइक जहाँ पे फेमस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जो एग्जाम्पल है उनको लिखते चले जाएं कि किसना दे केम आउट एंड दे बिकम मॉरल अथॉरिटी एंड लीडर एंड हाउ वी लॉस्ट मैनी पीपल. सोशल मीडिया पे लाइक काफ़ी वीडियो सर्कुलेट हो रही थी कि वेर इज बीजेपी लीडर, दे वर नॉट वेयरिंग मास्क एंड आफ्टर सम टाइम लाइक दे पास्ड अवे. दिस इज नॉट अ वेरी गुड रोल मॉडल का अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, और प्लीज़ आप उस तरीके के रोल मॉडल को ना फॉलो करें. सो यू बिकम अ गुड रोल मॉडल. नेक्स्ट इज द 7th स्टेप, दैट इज रोल ऑफ मीडिया. एंड मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. हमने कहा ना कि ट्रस्टेड चैनल,
तो अपने मीडिया को भी इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्लेस करना है, इट शुड रिपोर्ट ऑनेस्टली इन अनबाइस्ड मैनर। वी आर सेइंग हाउ पेड न्यूज हैज बिकम फिनोमिना एंड वन साइडेड न्यूज इज बीइंग सीड। हम बहुत ज़्यादा ना इस समय वन साइडेड न्यूज़ देखे जा रहे हैं एंड वन पर्टिकुलर कम्युनिटी इज बीइंग सीड। मीडिया में भी क्या देखा जा रहा है, वन पार्टी, वन कम्युनिटी इज बीइंग टारगेटेड एंड उनके रिलीजियस जो एस्पेक्ट है उसको देखा जा रहा है। सो द आर्टिकल इज मेकिंग एन अपील कि प्लीज मीडिया बी ऑनेस्ट एंड अनबाइस्ड इन देयर एस्पेक्ट एंड दे शुड लाइक जो हेल्पलेस वेयर हैं जो कि मीडिया पे डिपेंडेंट है अपने न्यूज़ के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखें। सो द आर्टिकल मेक्स अ न्यूज़ कि बी ऑनेस्ट एंड अनबाइस्ड एंड नॉट जस्ट दैट, इट ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि समटाइम पॉजिटिव न्यूज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो पॉजिटिव न्यूज़ देखते हैं ना कि लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल कि रिसेंटली देयर वर वेरियस न्यूज़ इन द आर्टिकल कि अ वुमन 106 year old, a man 109-year-old, he was infected by COVID and he recovered safely from the COVID. So these are very good example, you know, these are the positive example जो कि हम ला सकते हैं, because what is happening, many death are result of panic because we lose like in the entire COVID scenario, the people who are losing life are not just old people, they were even young generation, and often that happened because of panic scenario, and panic is also causing hoarding, shortage of vaccine, shortage of shortage not just vaccine but the oxygen cylinder and medicine and etc. So because of it, it is advised to everybody कि यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। With this, we are done with today's simplifying the editorial. I hope this editorial was very helpful to you. And if you think we should continue with this session, so stay connected to us. Stay at home, stay healthy, and stay safe, and stay connected to AQIS.